Okay, good afternoon all. See here, Utkarsh has asked one question. Limit as x tends to infinity, root x plus root x plus root x minus root x. So what we have done here, Utkarsh, again I will explain this. Yes, ma'am. No need to take that 1 by n and 0 and all, nothing. Just directly you can Just take common लेने. root x common ले सकते हो आप लोग. So what will be there? Limit as x tends to infinity. यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से रूट एक्स नहीं कॉमन ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ाती हूँ मैं इधर. What we are doing in square root, I have taken x common from both the terms. Here x is there, I have written 1. Here into x is not there, so we can write in the division. So it will be square root of x plus root x whole thing divided by x. So that if we multiply this inside, you will get the previous term only. Okay, now this square root we have written like this, minus square root of x. Now here square root of a into b, square root of a into square root of b, तो वो सेपरेट हो जाएगा ना. So we can write this as a limit x tends to infinity root x into root. अभी ये देखो अंदर क्या हो रहा है, 1 प्लस, अभी ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही बाहर आने के बाद उसका जो भी स्क्वायर रूट आता है. ठीक है, तो मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ स्क्वायर रूट में. ये क्या बनेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकाल दिया, -1. इसमें कोई डाउट है किसी को, बॉयज, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, ठीक है. तो ये क्या हो गया, अभी अगर हमने ये लिमिट दोनों को सेपरेट कर दो, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स इनटू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. अभी रूट के अंदर क्या चल रहा है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ, 2 माइनस हाफ, 2 में से आधा गया, डेट 3/2. सो 1 अपॉन एक्स रेस टू 3/2, मतलब डिनोमिनेटर में है और एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. क्लियरली दिस टर्म्स विल बी 0, -1. Now if we'll apply the limit here, we'll get root 1 plus 0, it will be clearly 1, and 1 minus 1 will be 0, and 0 into anything will be 0. So what we have, limit as x tends to infinity root x into 0. Now how this 0 has come, now only I have explained this. Okay, so the limiting value for this is equal to 0. Here equal to 0 I have written. Okay, any doubt now? This is equals to 0. No, ma'am. ठीक है, are you writing all? Are you writing? Ma'am, written, ma'am. Okay, okay. So we'll erase it. Okay, yesterday we have started with the integrals. I have given you the questions. Have you solved it? कौन से क्वेश्चन दिए थे वो देखे भी नहीं तो सॉल्व करना तो दूर की बात है ना. So next is we have started with the simple algebraic functions. ठीक है, next is चलो हमने कितने कौन से देखे थे, लीनियर फॉर्म देखा था, हाँ या ना, इंटीग्रल्स में लीनियर फॉर्म हैव यू सीन? Ma'am, linear as in what kind? लीनियर हो गया था ना,
अल्जेब्रिक फंक्शनल हुआ था. लिनियरिकल बघितलेला ax plus b. यस मैम वो हुआ ना. That ax chain plus rule b we whole were raised to saying n. for integrals, chain rule Yes है ना? ma'am. Yes ma'am. हाँ हाँ. Yes ma'am. Okay. So the next is chain rule हो गया आपका. अभी next है. Now you have evaluated that. Suppose integration of. So like the examples ले लेते हैं ना उसके. Example number 2. Evaluate integration of x square minus 1 upon x into x plus 1 upon x cube dx. चलो कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? सिखाया नहीं है आपको लगा तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को. मैम, सिखाया नहीं है अ तुम्हें 1/x फॉर्म शिकवला नहीं है. yesterday Log I x told भी ना 1 किया by किया. x log x आता है उसका इंटीग्रेशन. कल बताया ना मैंने. नाही आ रही है. यस अजिंक्य. त्याच्या डाऊट मध्ये सांगितलं, असं वेगळं स्पेसिफिक शिकवलं But नाही ना. here no need to use 1 by x, Ajinkya. Just we are multiplying and using x raised to n form. It is मल्टिप्लाय not required here. केलं तरी 1/x राहिलंच ना. Where it will be? -1/x into +1/x 1/x raised to 4. यहाँ पे होगा ये और इसका मल्टीप्लिकेशन आने के बाद होगा. ठीक है चलो लिख लो. Integration of, yes Ajinkya, integration of 1 upon x, because here x raised to -1 is here. 1 by x we can write, and the form which we have seen x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1, and this is n is not equals to -1. Means this formula we cannot apply for 1 by x. Is it clear? Now the integration of 1 upon x dx is equals to log of mod of x plus constant of integration. ठीक है. Okay, now always mod will be there. Yes. Mod लावलं नाही लावलं तरी Integration log of 1 by x dx is equals to log of mod of x plus c. If you differentiate this term, you will get 1 by x. Getting? Why modulus is given? Will you tell me the reason why modulus is given? Because negative values cannot work in log. Yes, negative and Zero. 0. Yes. 0. So the domain for logarithmic function is set of all positive reals open Yes, 0 to ma'am. infinity. Yes. Yes ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So we'll solve this example. So multiply now both the brackets. After getting multiplied, what will be there? What will be there? Have you seen the syllabus which I have given? Syllabus for mathematics. Have you seen? No, ma'am. On the group it is given na. Boys, what I am asking you, have you seen the syllabus? First, second and fifth chapter. I have not taken sixth chapter. Application of derivatives I have not taken. First, Theory second and fifth. Function Huh? continuity आणि function continuity आणि Relations and functions, तीसरा chapter continuity and differentiability, और एक इन्वर्सिटी को लिया ना उसमें. ठीक है? differentiation नाही घेतला का? मॅम कुठं पाठवलंय मॅम मला भेटलंच नाहीये. अरे आप देखने differentiation नाही घेतलं का? डिफरेंशिएशन लिया ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सिर्फ एओडी नहीं लिया उसमें. फर्स्ट टू चैप्टर्स लिए हैं, उसके बाद में फिफ्थ चैप्टर लिया है. जो हमने फिफ्थ स्टार्ट किया था ना, तो फिफ्थ चैप्टर लिया है. ठीक है?
हम सिलेबस कुठे आहे मॅम? नाही दिसतोय ग्रुप पर. अरे ऑनलाइन ग्रुप पे है ना शायद. नहीं मिल रहा मैम मुझे. बस नंबर ऐड करो लिखा हुआ है, वो मैसेज है. और अभी अभिजीत सर का मैसेज है, एक आकाश सर्वोदय का नंबर मांग रहे थे जिसमें. अरे मिला है आप मिला है ऑनलाइन ग्रुप नहीं उत्कर्ष देखते मिला हो है क्या? उत्कर्ष व्हाट इज इट मिला है करना. सिलेबस आया है अभी देखा मैंने उत्कर्ष डिफरेंशिएबिलिटी है खेरे का नंबर 32 नहीं होगा उसमें. है ना सिलेबस. मैम ने भेजा ना, तुरंत मैम ने. भेजा है मैं भेजा है अरे भेजा है। आपने कुठल्या जो ग्रुप पर है सेपरेट मैम? क्लासेस बनाए हैं ना, उसमें है ना. मैम मैं नहीं रहूंगा फिर ग्रुप में. वो क्यों? मेरे को मिला ही नहीं सिलेबस मैम. आप कौन से क्लास में हो उत्कर्ष? ए में हो या बी में हो? ए मैम ए. हाँ, तो आपका नंबर होगा ना ए में ऐड किया हुआ. मैम नहीं है मैम, एक ही ग्रुप है पीएसबी का मेरे इसमें. तो आपके मम्मी का होगा, किसी का तो भी ऐड किया होगा. एक बार चेक करो घर मैम में. मेरा खुद का नंबर नहीं है, मम्मी का ही फोन यूज करता हूँ मैं. नहीं है मैम. Number ending with 345 is added, Utkarsh. सर विच नंबर? The number ending with 345, that is added. सर दैट्स माय फादर्स नंबर सर. आई डोंट यूज हिज फोन. So why you haven't given the number then? On the group it has been asked for 3 to 4 times. Sir, there is my mother's number in this group also. So I thought you might. On that group again, the number which you want to add. Yes, sir. I'm typing right now. Okay. Okay now, Utkarsh? Yes, ma'am. Okay. चलो. If we multiply with x, what we will get? X cube minus 1. Plus, if we multiply with 1 by x cube, we'll get 1 upon x minus 1 upon x raised to 4. बराबर? dx equals to, what will be there? See, now here, like differentiation, we have seen the algebra of differentiation for addition and subtraction. It is same for integration also. Just for multiplication, it is different. Okay. So here we can integrate each term separately. So integration of x cube dx minus integration of 1 dx plus integration of 1 by x dx minus integration of 1 upon x raised to 4 dx. Okay. So now x cube. What is the integration of x cube? Yes, Chaitanya. 4. X raised to 4 upon 4 minus integration of 1. X. क्या आएगा? Constant नहीं लावायचं. हाँ. Constant end मेरे. End में plus लगा C. दो. upon वो 4 ना इवेल्युएट करने के बाद ना, इंटीग्रेट करने के बाद. End में लगाते constant. Last. Now for each term, if you add the प्रत्येकाचं constant. वेगवेगळं इंटिग्रेट करतोय तर कॉन्स्टंट नाही लावायचं का वेगळं? No. At the last you can write plus c. No need to. And if नहीं you नहीं, as want. in total C of every integration is written as one big C. ठीक है. पण असं का आपण प्रत्येकाचं वेगळं Yes, इंटिग्रेट करतो ना? अजिंक्य, इंटिग्रेट अजिंक्य. केल्यावर इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट तर लावायचंच Ajinkya. आहे. Here you can write plus C1 plus C2 plus C3 plus C4. But at last all means addition of all constants will be one constant only. You can write in each integral also plus C1 plus C2 अलग अलग आप constant ऐड करो और last step में उसको एक ही constant बना दो, वो भी चलेगा. ठीक है ना? Better way to write it in the add. Better way to write add in the last step. ठीक है? अजिंक्य, आपने यहाँ पे भी ऐड किया तो भी चलेगा. Yes, ma'am. Integration of 1 x plus integration of 1 by x. Now only we have seen log of mod of x minus integration of 1 upon x raised to 4. क्या होगा? log of mod of x raised to 4 X raised to minus 3/3. ये -4 होगा, +1 करोगे तो -3 upon -3. Yes. 1 upon 1/3 x cube. 1 upon 3 X cube x cube और वो +3 हो जाएगा ना? plus C. +3 होगा ना यहाँ पे? मैम C होगा ना मैम? अरे इसका जो -3 था वो -3 और माइनस मिलके +3 होगा +4 और ना? प्लस हाँ, अच्छा, वो। लास्ट में.
यस मैम, यस मैम, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल विल टेक integration of x square plus 2. I'll write here integration of example third, integration of x square plus 2 in bracket 3x plus 5 whole thing मम्मी divided फोन by लेना। x square whole thing divided by x square. कैसे करोगे? dx इधर आएगा dx, कैसे करोगे? मैम दिख नहीं है क्या लिखा है मैम? क्या लिखा है? मैथ्स लिखा है ना, क्या लिखूंगी मैं उधर? मैम दिख नहीं रहा मैम राइट साइड का। कुछ भी नहीं दिख रहा। ये क्या यहाँ पे दिख रहा है? बोर्ड यहाँ पे शाइन कर रहा है सिर्फ। हाँ वो क्या है? ई क्या लिखा है मैम वो? अरे एग्जाम्पल है ना रे, अच्छा ओके ओके। एग्जाम्पल थर्ड। मुझे लगा आप लिख रहे होगे इसलिए मैंने इरेज नहीं किया था। लिख के हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी देयर? कैसे करोगे? मैं मल्टीप्लाई कर दूं फिर x स्क्वायर कॉमन निकाल के काट दूं। और ठीक है, तो क्या करोगे? एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 5 whole thing divided by x square. Okay, so what? Integration of 3x cube plus 6x plus 5x square plus 10 whole thing divided by x square. ठीक है, उसके बाद सेपरेट कर दो टर्म्स। dx with respect to x we are integrating, so here we have integration of 3x plus 6 by x plus 5 plus 10 upon x square dx. ये स्क्वायर है, ये भी x है, ठीक है। नाउ सेपरेट इट, व्हाट विल बी देयर? इंटीग्रल देन चलो बताओ क्या होगा? हम 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 6 log x माइनस 10x प्लस c। ठीक है, 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 log 6 of log x mod of x प्लस 5x माइनस 10x माइनस 10 by x minus 10 by x, yes, minus 10 by x, because plus here c। one more formula we have. Yes Ajinkya, what we can do here, 1 upon x का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 upon x स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, मतलब हम हमारे पास रखते हैं माइनस साइन, तो 1 upon x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 upon x, बराबर, और लास्ट में प्लस सी। यस, गेटिंग? आर्य, संकेत, सूर्यवंशी, आर यू देयर बोथ? आर्य, संकेत is there. Arya, Atharva Gatpande is also there. Arya Dharmati is not there, no? Okay. Suraj, Akshay, Apte. Akshay, are you there? मैम नहीं, Akshay, Akshay. Suraj is there. Akshay, Apte. Aditya Tavde, are you there? Are you there, Aditya Tavde? ठीक है, चलो, what we have, 3x square plus 6 log mod x plus 5x minus 10 upon x plus c. Next example is, write down. Next example is
इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ अभी ऐसे टर्म्स दिएंगे तो आपको आ जाएगा ना ये। एक सॉल्व करो लास्ट वाला, फिर दूसरा लेते हैं हम लोग। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x प्लस 7 होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 4 dx। चलो करो जल्दी जल्दी सॉल्व और मुझे बताओ फाइनल आंसर। ये सॉल्व इट। ठीक है, इज इट विजिबल? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am, visible. ओके ओके। चलो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। चलो क्या है, x माइनस 3 एक्स प्लस 2, लगा तो आप x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 कर लो, आपको जो चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 14 आएगा। उसको फिर से x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो व्हाट विल बी देयर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर 2x plus 7x is 9x, 9x plus 14 whole thing divided by x minus 4 dx। ठीक है, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 14 3 42 whole thing divided by x minus 4। चलो dx सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यस। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 14, तो ये हो जाएगा माइनस 13x माइनस 42 अपॉन x माइनस 4। चलो आगे क्या करोगे, डिवाइड करो उसको, चलेगा क्या? डिवीजन आती है ना? डिवाइड कैसे कर रहे हैं सर? रिमाइंडर वाला का, रिमाइंडर वाला यू का आर नॉट ऑडिबल अजिंक्य प्रॉपर्ली। यस अजिंक्य, हाँ डिवीजन करके लिखो ना उसको, कैसे लिखोगे? व्हाट इज सेइंग? यस अजिंक्य, वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। Ma'am, he is saying remainder रिमाइंडर आला आलं तर तर काय काय? होणार? रिमाइंडर, रिमाइंडर काय? रिमाइंडर आला तर काय करणार आहे? मग येऊ दे ना, काय त्याला डिवाइजर कोशंट रिमाइंड वी कैन राइट इट ना। आप डिवाइड तो करो पहले, बता। चलो जल्दी जल्दी, ये साइड में करके बताओ क्या। मैम कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता इसमें? नहीं ना, इंटीग्रेशन में नहीं है ना। प्रोडक्ट रूल भी बहुत अलग है उसमें। प्रोडक्ट रूल बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको। चलो कैसे करोगे, मैं करके बताऊं क्या? चलो हम करते हैं अभी यहाँ पे। What is the
डिवाइजर हियर मैम x x square minus 4. plus 10x plus 27 quotient है तो हाँ, एक मिनट। हाँ, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 42 x माइनस 4 बराबर। दिख रहा है ना? बोर्ड शाइन नहीं कर रहा ना? इज इट क्लियर? 66 रिमाइंडर है तो हाँ 66 रिमाइंडर रहता है 66 यस करेक्ट करेक्ट। x स्क्वायर प्लस पूरा 10x प्लस रहता है 27 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, हम भी करते हैं ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 10x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 42 बराबर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर? क्लियरली 10x से। पहले किससे किया हमने? x स्क्वायर, अभी करना पड़ेगा 10x से। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x, ये माइनस 42, ये होता है आपका 0 बराबर। प्लस 27 से करो, 27x माइनस कितने होता है? 108 आता क्या? 108 हाँ 108 आता ना। 20 4 जा 80 एंड 7 4 जा 28, तो 108 आता ना। हाँ या ना कर रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो हाँ अजिंक्य हेलो बोलो बोलो। मैं आवाज येत नाही का मैम 108 आता शायद। Yes, ma'am. Now it is okay अजिंक्य, now your voice is coming बेटा। माइनस 108, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये क्या है? माइनस है क्या? बरोबर है 66 हाँ ये बरोबर माइनस है होता बराबर। तो ये हो जाएगा 0 और 100 में से 42 गए, ये 6 और 10 माइनस 4 6 प्लस 66 इज द रिमाइंडर। So how you can write this? Upon this you can write here only will write it, dx लिखना भूल गए शायद। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27 प्लस क्या होगा? 66 अपॉन x माइनस 4 है ना, dx बराबर क्या? बराबर क्या? अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? हेलो हेलो हाँ अजिंक्य, आई एम गेटिंग योर वॉइस। आवाज येतोय का मॅडम यस यस कमिंग, वॉइस इज देयर। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 42, सॉरी डबल लिख दिया मैंने। सो दिस वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27 प्लस 66 अपॉन x माइनस 4, ठीक है, इनटू dx। अभी ये कर सकते हो ना इंटीग्रेट? मैम ये कैसे लिखा अजून नाही लास्ट स्टेप? अपॉन x मायनस 4 ला कसं इंटिग्रेट करणार त्याला आणखी डिवाइड करावं लागेल ना लीनियर अनलेस फॉर्म खाली आएगा 1 ना बाय रे। x फॉर्म येईल अरे ax प्लस b का फॉर्म है ना बेटा, कल ही तो देखा हमने। मॅम मैम पर पण रेस टू डिनोमिनेटर में है -1 ना। नाही घेऊ तो शकत ना x रेस टू प्लस, -1 घेऊ नाही शकत ना अरे हाँ यहाँ पे लॉग का टर्म यूज करना पड़ेगा ना फिर, लॉग लॉग, सॉरी ये बोल रहे हैं ना आप लोग, सॉरी सॉरी लॉग में यूज करना पड़ेगा ना, लॉग 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 ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4 आएगा ना उसका, लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4, ठीक है। यस मैम। हाँ करो जल्दी जल्दी सॉल्व, क्या आएगा फिर? मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा मैम, वो क्यूब को आपने ऐसे कैसे लिखा? एक क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर थोड़ी रहता वो। अरे आप इसका एलसीएम लो तो यही मिलेगा ना आपको ऐड करके। ये फॉर्म नहीं देख पता आपको? हाँ हाँ समझा समझा समझा। हाँ उत्कर्ष ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो शायद। नहीं
ठीक है, क्या आएगा इंटीग्रल इसका, सेपरेट करो दोनों को इंटीग्रल, हर एक टर्म को सेपरेट हो जाएगा, ये आएगा x³/3 प्लस 10x² मतलब ये 5 हो जाएगा, प्लस 27x प्लस 66 इंटू लॉग ऑफ mod of x minus 4. Now see student, here if ax plus b is there, 1/ax plus b, just ax plus b, रेस्ट टू n वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी पावर ऊपर जाके -1 होने वाली है, तो log of mod of ax plus b आएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी x minus 4 का डेरिवेटिव क्या है, x minus 4 का डेरिवेटिव क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस, नो मैम, है ना, गेटिंग, should I erase it? Yes, ma'am. Okay, next is अभी अगर 1/ax plus b है सिर्फ, तो हम log of mod of ax plus b upon a लिखेंगे। अगर उसकी n पावर हो तो आएगा, आपको सॉल्व करते हैं, n पावर हो तो आएगा। एग्जाम्पल लो क्या उसका एक, यस मैम, n पावर के लिए, चलो यस मैम, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x plus 5, सॉरी 4x plus 3 raised to 5, कैसे करोगे इंटीग्रेट, जल्दी जल्दी बताओ, परत एकदा सांगा, ऐकून नाही आलं. रुको मैं लिखती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x plus 3 raised to 5 dx, कैसे करोगे, इस इसका जनरल फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, log 4x plus 3 upon 5 4x plus 3 raised to 4 plus 4. okay, this we can write 4x plus 3 raised to -5 dx, same formula we can apply, 4x plus 3 -5 plus 1 है ना, -5 plus 1 बराबर इंटू 4 प्लस c, बराबर है क्या, मॅम आता तुम्ही 2 मिनिटं आधी म्हटलेलं की 1/ax plus b raised to n वाला फॉर्म आला तर log ax plus b लिहायचं आणि खाली raised to 1, डेरिवेट करायचं. raised to 1, that only I have told beta, 1/ax plus b raised to 1, then we can use log, that only I have asked, no, रेस टू 1 केलं तर ऑफ कोर्स एच येणार आहे ना, मग कशाला डेरिवेट करायचं त्याला. 1/ax plus b raised to 1, if it is there then we are taking log. Now if 1/ax plus b raised to n is there, are you getting this, प्रत्येक रेस टू 2 ला वेगळा फॉर्म असेल, रेस टू 3 ला speak वेगळा loudly, I am form not असेल. getting beta, speak loudly, असं केलं तर रेस टू 2 ला वेगळा फॉर्म, रेस टू 3 ला वेगळा फॉर्म. only for n equals to -1 we cannot take, I have told already, for x raised to n also we have not taken because the denominator n plus 1, if equate to 0 will give 0 value, no, n equals to -1 if we'll put there, okay, that's why we cannot take it. Are you getting this, Ajinkya? Only for n equals to -1 we are not taking, and remaining n same, remaining all real numbers you can take, all real numbers except -1, ठीक है, यस मैम. it is very simple, ax plus b raised to n फॉर्म है,
तो क्या आया ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into derivative of 4x plus 3 that is 4 plus constant of integration. Yes, getting all? सूरज 4x plus 3 raised to 5 चा डेरिव्हेटिव्ह का नाही घेतला, फक्त 4x plus 3 Yes, चा ma'am, डेरिव्हेटिव्ह understood. का घेतला? getting na? This 5 is a power of the function. Function raised to n. Yesterday only I have told. Utkarsh was saying he was telling that this is the chain rule for the integration. Now integration of f of x raised to n is f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 upon derivative of f. Yes, Ajinkya. Yesterday you got it when I have asked. And same form I have used now. F of x raised to n. Now f of x raised to n. F of x raised to n plus 1 upon n plus 1 into f dash of x. Getting now? Ajinkya? Yes or no, beta? Got it? Ajinkya, are you there? Okay. So next is, you can simplify if you want to simplify this. Minus 4 plus 4 will be, minus 4 into plus 4 will be minus 16. So it will be minus 1 upon 16 times 4x plus 3 raised to 4 plus c. ठीक है? Okay. Next. इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अभी ये एग्जांपल तो हो गया. नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म. राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ dx upon root ax plus b. How we can integrate this? Integration of root ax 1 upon root ax dx. How we can integrate? General formula you can write. Integration of 1 upon root ax plus b. कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? What is the derivative of root x? I'm raised to power minus half. नहीं, हाँ वो तो कर सकते हो आप लोग, लेकिन what is the derivative of root x? Minus 1 upon 2 root x. 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. Minus 1 by 2 root x. Okay, then what is the derivative of? ठीक है, अभी एक काम करेंगे. 1 by 2 root x. अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया to 1 upon integration of root x dx. अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे root x मिलना चाहिए ना? इसको इंटीग्रेट कैसे? root x मिलना चाहिए ना? तो डिनोमिनेटर कैसे इन्वर्ट हो जाता है? उत्कर्ष, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ d by dx निकाल के इधर इंटीग्रेट किया. कल ही तो बताया है ना? ये 2 में इधर लेके जाओ. बराबर? हाँ या ना? यस मैम. समझे? If I will replace this x by ax plus b, तो क्या होगा? अब बताओ. 2 into under root of ax plus b. और क्या होगा बेटा? यहाँ पे x था, वहां पे ax plus b है. Into a. इंटू आएगा इंटीग्रेशन में, नहीं डिवाइड हो गया क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. गेटिंग? सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस. उत्कर्ष, आर यू गेटिंग दिस? यस मैम. 2 root ax plus b upon a plus constant of integration. ठीक है? So what is the integration of 1 upon root? और सूरज आप बता रहे थे ना तब कि ये रेस्ट टू हाफ करेंगे और ऊपर जाके माइनस हाफ करेंगे, उससे भी यही आंसर आता है. उससे भी यही आंसर आता है. ठीक है बेटा?
अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं आया ना तो आप वहां पे डायरेक्टली रेस्ट टू एन पावर का यूज कर सकते हो, ठीक है? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है। So here we have 1 upon root ax plus b dx equals to 2 root ax plus b upon a plus constant of integration. So first example is integration of 1 upon root 5x minus 3. चलो बताओ जल्दी। root 5x minus 3. 2 into under root of 5x minus 3 upon 5 plus c. Okay. 2 into under root 5x minus 3 upon 5 plus c. It is very easy. 2 under root तो 5x फॉर्मूला minus 3. कसा आला समजलं नाही. I have taken 3-4 times your name. You were not there. I have explained the form. कनेक्शन गेलेला. You were there na, Connection but गेलेला. Ajinkya means मी होतो पण it कनेक्शन was नव्हता ना. showing plus c. This formula you are asking. हा तोच. Now here ax plus b raised to n, just now we have seen. Same form we have applied here. Huh? 1 upon, so this root we can write ax plus b raised to minus 1 by 2 integration dx. So ax plus b raised to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 into derivative of this ax plus b is a minus half plus 1 is root only, means 1 by 2 only, और ये भी होगा 1 by 2. तो 1 by 2 का ये 2 ऊपर चला जाएगा. अजिंक्य नाउ गेटिंग? अभी इतना तो आपको आना ही चाहिए. समझे कि नहीं 1 upon समझे? ax plus b मध्ये अजून कन्फ्युजन आहे. What? 1 upon ax plus b फॉर्म त्याच्यात अजून 1 upon कन्फ्युजन आहे. ax plus b raised to 1 is different. For that it is a different form, and 1 upon ax plus b raised to n, मतलब कोई भी हो ax plus b raised to n के लिए अलग फॉर्म है, और if your n is equals to -1 then there is a different form. ax plus b raised to n के लिए अलग है. In general n belongs to set of real numbers, and ax plus b raised to -1, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए log वाला फॉर्म. ठीक है अजिंक्य? येस और नो? लॉग टाकलं तर नुसतं log ax plus b राहील ना. For this it will be log of mod of ax plus b, और इसका डेरिवेटिव आएगा a. आणि साधा n फॉर्मॅट. For this you will get this, and for only n, नुसता n नाही -n. माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो सकता है ना, उसके लिए क्या है? माइनस एन भी रहा इधर तो सेम ही आएगा ना रे, सेम फॉर्मूला होगा ना. ax plus b raised to minus n plus 1 upon minus n plus 1 into इसका डेरिवेटिव a. ये n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सेम फॉर्मूला होगा.
सिर्फ आपको वो नंबर्स का कैलकुलेशन ठीक से आना चाहिए। अभी यहाँ पे रूट था ना, तो ये 1/2 हो गया, ऊपर जाने के बाद -1/√2 होगा। गेटिंग? Yes. ठीक है। एनी डाउट इन दिस ऑल एग्जांपल्स देन? अजिंक्य आप एक काम करो, मैं इस पे असाइनमेंट देती हूँ आपको, आप वो एग्जांपल सॉल्व करो, कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, ठीक है? Yes. यस और नो? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो थैंक यू। रिमेनिंग एग्जांपल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। ma'am.